નમસ્કાર, કે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. યોગ ભગાવે રોગ, આ જે શબ્દ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં વર્ષોથી ચર્ચાઈ રહ્યો છે અને વર્ષોથી તેનું એક મહત્વ પણ રહેલું છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જે સંસ્કૃત શબ્દ યોગ છે તેના અનેક અર્થ થાય છે. તે સંસ્કૃત મૂળ શબ્દ યુઝમાંથી ઉતરી આવેલો છે. યુઝ એટલે નિયંત્રણ મેળવવું. આપણા શરીર ઉપરનું નિયંત્રણ કેવી રીતે મેળવવું અને કેવી રીતે નિયંત્રણ કેળવવું તે યોગને અલગ અલગ આસનોમાંથી તેની જાણકારી મળી રહે છે ને એ આસનો દ્વારા અનેક રોગોને મટાડવાના પ્રયોગો પણ સફળ થયેલા છે. દુનિયા આખીએ જ્યારે આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિના માંથી આવેલો યોગ, આપણા ઋષિમુનિઓએ આપેલો યોગ અપનાવી રહી છે, ત્યારે યોગની દર વર્ષે વિશ્વ યોગ દિવસ પણ મનાવવામાં આવે છે. આગળ વાત કરીએ તો યોગ એટલે વર્ચસ્વ મેળવવું, પોતાના શરીર ઉપર સંગઠિત કરવું, શરીર ઉપર જે અલગ અલગ મેદસ્વીપણું છે તેને કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવો તે યોગ શાસ્ત્રની અંદર બતાવેલું છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો યોગ એટલે શરીરને એકબીજા સાથે જોડવું, એકત્ર કરવું અને જોડાણ કરવું. અને આ જે યોગની વૈકલ્પિક મૂળ જે યુજીર સમાધિ છે તેનો અર્થ એકાગ્રતા થાય છે અને ધ્યાન ધરવું તેનો એક બીજો અર્થ થાય છે. આ અર્થ દ્વૈતાત્મક રાજયોગ સાથે યોગ્ય રીતે બંધ બેસે છે, કારણ કે પદ્ધતિ અને પ્રકૃતિ અને પુરુષ વચ્ચેનો ભેદ પાડતી એકાગ્રતાને લીધે તે પ્રાપ્ત થાય છે. ભારતની બહાર પણ સામાન્ય રીતે યોગ શબ્દ હઠયોગ અને તેના વિવિધ આસનો કે વ્યાયામના એક સ્વરૂપ સાથે જોડાયેલો હોય છે. જે કોઈ વ્યક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરતી હોય, તેને યોગ ફિલોસોફીનું પાલન કરતી હોય તે યોગી કે યોગિની કહેવાય છે. કે ન્યૂઝમાં આજે આપણી સાથે આવી જ એક યોગિની જોડાયેલા છે અને યોગ એક્સપર્ટ જોડાયેલા છે, રિમ્પી મૂલચંદાની. તેમનું કે ન્યૂઝના સ્ટુડિયોમાં આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. રિમ્પીબેન, આજે જે આપણે દર્શક મિત્રોને યોગ પદ્ધતિ અને જે આસનો જણાવવાના છીએ તેના વિશે ટૂંકમાં આપણે માહિતી આપીશું. યોગ એક્સપર્ટ રિમ્પી મૂલચંદાની પાસે આપણે અલગ અલગ પ્રકારના આસનો અને તેની જાણકારી મેળવીશું અને કેવી રીતે તે આસનો કરાય અને તેની વિશેષતા શું છે તે પણ रिम्पी मूलचंदानी આપણને સમજાવશે. और जो मैं स्टार्टिंग में कराने वाली हूँ वात पित्त फर्स्ट एंटी रूमेटिक ग्रुप ऑफ आसनास, जिसमें हमारे पूरे पैरों के जॉइंट्स से लेके पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, प्राण का संचरण अच्छे से होगा, ऑक्सीजन का फ्लो पूरी बॉडी में अच्छे से होगा. हमने सिर्फ उसके अंदर एक ट्विस्ट की है चेयर को साथ में यूज करते हुए, तो उससे और ज्यादा हमारा जो ऑक्सीजन है एंड ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन तक इजीली पहुंच पाएगा. तो हम ये, और एक मैंने बैक मोस्टली हम ज़्यादातर ऑफिस में बैठ के बैक को काफ़ी स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से बैक रिलैक्सेशन के भी आसन मैंने करवाए हुए हैं. રિમ્પીબેન, બીજો એક પ્રશ્ન થાય છે અને તે દર્શક મિત્રો સાથે પહોંચાડવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરીશું કે જે આ ચેરથી ઉપયોગ કરીને જે યોગા આસનો આપે બતાવવાના છો થોડા સમય પછી, તેમાં શરૂઆતથી જે એકદમ અભ્યાસજનો છે નહીં અને જે હજી યોગ શીખી રહ્યા છે તે લોકો માટે આ આસનમાં સૌથી પહેલું આસન કયું, અને જે શીખાવું છે અથવા તો જેણે યોગ કર્યો નથી આ પહેલા તેને આ આસનો કરવા છે તો તેને કયા પ્રકારના પ્રિકોશન રાખવા જોઈએ? मैंने अभी जो ये पूरे सीरीज किए हैं वो बिगिनर्स के लिए ही करवाए हुए हैं. स्टार्टिंग में पैरों के टोस से स्टार्ट करती हूँ, गूफ नमन, गूफ चक्र, इस तरह से जानु नमन, जानु चक्र, सारे पैरों के लिए रिलैक्सेशन वाले करवाए. तो ये सारे बिगिनर्स के लिए ही हैं. हाँ, आपको अब जो प्रिकॉशन रखनी होती है वो ये है कि जब भी किसी आसन में आपको लग रहा है कि आपको कुछ असहनीय दर्द हो रहा है, तो आप वो आसन ऑन द स्पॉट स्टॉप कर सकते हो. असहनीय दर्द होता है तो ये एक टिप है कि वो ना करें. बाकी तब तक बाकी जो सारे आसन हो रहे हैं, तो आप भले उसके सेट्स अगर आपको कम रिपीट करने हो, 10 की जगह 5 करना हो, 7 करना हो, उस तरह से आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार उसको आसन को होल्ड कर सकते हैं और आप उस आसन के बेनिफिट्स सारे प्राप्त कर सकते हैं. अब हम सेतु का आसन करेंगे, बट चेयर को यूज करते हुए एज अ प्रॉप. पैरों को चेयर के ऊपर रखा, एक लंबी गहरी सांस लेके
बैक को अपलिफ्ट करेंगे, एल्बोस को बैक के नीचे ओम की 10 काउंट्स तक हम होल्ड करेंगे। ठीक है, रिलैक्स। अगेन एक बार और होल्ड करेंगे, गहरी सांस लेते हुए। मेंटल ओम की 10 काउंट। ठीक है, रिलैक्स। अब हम सर्वांगासन की ही एक और वेरिएशन करेंगे जिसमें हमारे इन्वर्जन के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जिससे अगर इस सर्वांगासन होने में मुश्किल हो रही हो तो ये आप इजीली इस आसन को होल्ड कर सकते हैं ओम की 30 काउंट्स तक। ठीक है, रिलैक्स। 30 काउंट्स हो गए। नीचे आ जाइए, रिलैक्स कर लीजिए पैरों को, पंजों को, सर्कुलर मोशंस, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक बार और फिर से होल्ड करेंगे। ओम की 30 काउंट्स। ठीक है, अब हम स्टमक के बल लेटेंगे। हम मर्जारी आसन कर लेते हैं जो हमारी नेक, स्पाइन, शोल्डर्स एंड हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टोन करता है। ब्रीद इन करते हुए फेस को ऊपर की ओर और बैक को सी कर्व। ब्रीद आउट करते हुए नेक को नीचे की तरफ, बैक को डी कर्व। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है, अब हम भुजंगासन करेंगे जो हमारे स्टमक को टोन करने के लिए है। ब्रीद इन करते हुए
मेंटल ओमम की 10 काउंट्स हम होल्ड करेंगे। गहरी सांस लो। Breathe out. Again, breathe in. Breathe out. एक बार और रिपीट कर लेते हैं। Breathe in. Breathe out. ठीक है, अब हम शलभासन कर रहे हैं, जो ये चेयर को यूज़ करते हुए बहुत ही इजी हमारी थाइस लिफ्ट अप हो सकती है। मुट्ठियाँ बंद करके थाइस के नीचे, ठीक, चिन फ्लोर पे, थाइस लिफ्ट अप की हुई, मेंटल ओमम की 10 काउंट। ये हमारी थाइस, बटक्स, लोअर एब्डोमेन को टोनिंग करने के लिए है। ठीक है, रिलैक्स। जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तो ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं लेग्स को। दो बार और ये रिपीट कर लेंगे। अगेन चिन फ्लोर पे, मुट्ठियां बंद करके थाइस के नीचे, ओम की। अब हम 20 काउंट्स होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, 20 काउंट्स हो गई। रिलैक्स कर लो पैरों को। ठीक है, एक और सेट ये लास्ट रिपीट कर लेंगे। मुट्ठियां बंद करके थाइस के नीचे, चिन फ्लोर पे, ट्वेंटी काउंट होल्ड। ठीक है, रिलैक्स। अब हम दूसरी चेयर की मदद से स्टमक को और ज़्यादा टोनिंग और मसाज का इम्पैक्ट देने के लिए ये हाथ यहाँ इसको पकड़े हुए, पैर पीछे। ठीक है, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम नौकासन करेंगे चेयर को यूज करते हुए, जो अगेन हमारे स्टमक को प्रॉपर्ली टोन अप करेगा। यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं मेंटल ओमम की 10 काउंट। ठीक है, रिलैक्स।
एक बार और होल्ड करेंगे हम। मेंटल ओमम की 10 काउंट। ठीक है, रिलैक्स। एक और हम स्टमक के लिए। हाथ फ्लोर पे लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और पूरा वेट हैंड्स एंड लेग्स की तरफ, बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऊपर। ब्रीद इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर को बटरफ्लाई की पोज में आगे हाथ रख के बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच कराएंगे। डीप रिलैक्सेशन फॉर द स्ट्रेच। 10 काउंट्स होल्ड। ठीक है, कम अप। एक बार और। मेंटल ओमम की 10 काउंट। ठीक है, रिलैक्स। आप जिस तरह से नौकासन करते हैं, अगेन वो हमारे स्टमक को टोन करने के लिए है। 10 काउंट्स तक हम होल्ड करेंगे। जैसे एना बोट चलाते हैं ना, वैसे ही इस तरह से। ठीक है, 10 काउंट स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, रिलैक्स कर लीजिए थोड़ी देर। राइट पैर को फोल्ड करते हुए 10 काउंट। ठीक है, लेफ्ट पैर से ठीक है। अब जो भी आसन किए हैं, शवासन में थोड़ा डीप रिलैक्सेशन करेंगे। हथेलियां आकाश की ओर। हर एक अपनी सांस जो भीतर आ रही है उसको देखते रहेंगे। आ रही है और जा रही है, उसके दृष्टा बनते जाएंगे। दृष्टा को कोई बंधन नहीं, ना ही कुछ कर्तव्य है, ना ही वो भोगता है। हम दृष्टा बढ़ते जाएंगे। जो भी हमने अभी आसन किए हैं, उन सब से जो भी हमारी बॉडी में स्ट्रेच फील हुआ है,
उसको हर एक श्वास से देखते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करते जाएंगे। पैरों से स्टार्ट करते हुए पूरा अवेयरनेस और फोकस हमारे पैरों की तरफ। ये पैर हम नहीं, ये हमारे हैं। अब हम नीज की तरफ ध्यान एकत्रित करेंगे। थाइस की तरफ, बटक की तरफ, स्टमक, हर एक बॉडी पार्ट को इस तरह से देखते हुए उसको रिलैक्स। चेस्ट की तरफ, नेक, फेस, हेड, shoulders, upper arms, elbows, lower arms, wrist, palm, fingers। ठीक है, अब पूरी की बॉडी रिलैक्स हो गई है। अब हम मोस्टली सबको बैक एक की तकलीफ बहुत ज़्यादा हमने है ना फ्रीक्वेंटली पाई हुई है, क्योंकि ऑफिस में सब लोग ज़्यादा हमारा रूटीन काम बैठने का ज़्यादा हो गया है। तो 2-3 बैक रिलैक्सिंग आसनास मैं आपको बता देती हूँ। नमस्कार मुद्रा करते हुए फॉरहेड को फ्लोर पे टच करेंगे। मेंटल ओम की 20 काउंट होल्ड। नीचे की बॉडी नीचे की तरफ स्ट्रेच की हुई, ऊपर की तरफ। आप हाथ को फोल्ड करते हुए एल्बोज फ्लोर पे, पाम्स के ऊपर हमारा फेस, हमारा फोकस या तो नोज की टिप पॉइंट पे, या तो दोनों आईब्रोज के बीच, या तो आंखें बंद करता हुआ। अगेन ये हमारी बैक को रिलैक्सेशन दे रहा है। ओम की 20 काउंट्स तक हम होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार और अश्वासन रिपीट कर लेते हैं। फॉरहेड फ्लोर पे, ओम की 20 काउंट्स होल्ड करते हैं। ठीक है, अगेन हैंड्स को फोल्ड करते हुए एल्बोज फ्लोर पे, पाम्स पे हमारा फेस रेस्ट करता हुआ। ओम की 20 काउंट्स होल्ड।
है, अब आर्म्स को फ्लोर पे, फेस अपवर्ड्स, आगे या तो नोज टिप पे फोकस करिए या दोनों आईब्रोज के बीच या सामने की तरफ एक पॉइंट पे। मेंटल ओमोम की 10 काउंट्स होल्ड। ठीक है, रिलैक्स, एक बार और 10 काउंट्स होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, एक और बैक को रिलैक्सेशन, मत्स्य कीड़ा आसन। ये ना लेफ्ट पैर की ही नी और एल्बो लेफ्ट हैंड का दोनों आपस में टच होने चाहिए। फेस दोनों हैंड्स के ऊपर रेस्ट करना हुआ होना चाहिए। ओमोम की 10 काउंट्स हम होल्ड करेंगे। ठीक है, दूसरे साइड। ठीक है, साइड चेंज। मेंटल ओमोम की 10 काउंट्स होल्ड। ठीक है, दूसरे साइड। टेन काउंट्स होल्ड। अब हम दृष्टि का आसन कर रहे हैं। हाथों का क्लैस्प बना के नेक की तरफ रखेंगे, फॉरहेड फ्लोर पे। मेंटल ओमोम की 10 काउंट। ठीक है, रिलैक्स, एक बार और होल्ड कर लेंगे। કે ન્યૂઝ એક અપીલ કરે છે કે બાળકો અભ્યાસ કર્યા વિના આ પ્રકારના આસનો ન કરે, પહેલા તેની તાલીમ લે જે યોગા ટીચર છે અથવા તો યોગ એક્સપર્ટ છે, અને ત્યાર પછી જ પોતાના ઘરે બાળકો તેનો પ્રયોગ કરે તે હિતાવહ છે. કારણ કે વ્યવસ્થિત ટ્રેનિંગ નહીં હોય તો પોતાના શરીર અથવા પોતાના અંગોને નુકસાન થવાની પણ સંભાવના છે. તે માટે ખાસ ધ્યાન રાખે, બાળકો આનો ઉપયોગ શીખ્યા વગર અથવા તો તાલીમ લીધા વગર ન કરે. રિમ્પી મૂલચંદાનીએ આપણને ખૂબ સરસ રીતે યોગના અલગ અલગ આસનો અહીં બતાવ્યા છે અને દર્શક મિત્રો સુધી તેની એક સચોટ માહિતી પહોંચે તેવો એક પ્રયત્ન કર્યો છે. રિમ્પીબેન, અમારા આ સ્ટુડિયો ઉપર આજે કાર્યક્રમમાં આવવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કે ન્યૂઝમાં ફરીથી આપણે અલગ અલગ પ્રકારના યોગા વિશે મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.